Thank you so much to the entire panel for giving us a lot of very valuable insights and to the audience for patiently listening. Now I'd like to shift the entire focus to the second elephant in the room. That is, please sir, go ahead. Good afternoon, sir. Sir, I am from Bhavnagar, HK Enterprise and Sons. Sir, I wanted to ask, if a person is okay at the time of purchase of the material, and after a few years, means about 5 years, 10 years, 20 years, whenever he is alive till, and if after some time he starts doing a bogus billing, and if he is found, till the time he was doing with me, he was okay. I have checked his GSTR 3B, GSTR 1A, everything. I have checked his premises. I personally went and loaded the material. If after 5 years, if he is found guilty or if he has started doing a fraud, so what is the process? And one more thing, if the RCM process is being rectified, if a person, I am deducting 2%, he is getting 2% after some time, and if he is found in fake, will it be charged to me as it is being done right now? So first thing is we are yet awaiting the notification on this. No, means I wanted to On ask. the RCM part. Yeah. So we are awaiting the notification as awaited, right, sir? So once the notification comes, we will be in a better position to understand now what the scenario is. That is one part. Your first question, that if he was a genuine supplier earlier and then later becomes fake, then you have to rely on what Vivek sir said. You will have to ask for cross-examination of the supplier in your reply to the show cause. And so one more thing I wanted to add, like we are taking a loan from a bank. They are checking the CIBIL rating. If there is any same process for GST also, like if you are taking a soap, it has got a expiry and a manufacturing date. Means if you are giving me a GST certificate, it should be valid for so and so date. After so and so date, the re-verification should be done. He should be given a new number, or else the new number should be continued for some more time. If that process is been done, the ungenuine will be out of the market. Yes. I think so. Yes. So this particular provision lies in the act. Okay, let me tell you. GST रेटिंग का प्रोविज़न आज की तारीख में कानून में है, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया है. तो आप अपना एक और ग्राउंड ये बनाइए कि आपको जो करना था वो भी आपने नहीं किया. सो हाउ अ रेसिपिएंट कैन बी हेल्ड लाइबल कि उन्होंने आपको कोई भी तरीके का मॉडलिटी नहीं दिया ये असेस करने का जिस पर वो डाउट कर रहे हैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू. सर दिस कुड बी वन ऑफ द ग्राउंड्स, राइट? और सर आई कैन से कि वो रेटिंग का कॉन्सेप्ट लॉ में है, इम्प्लीमेंटेशन में अभी तक नहीं आया. सर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग की ये जो इनवॉइस है जिसके पास हम लोग मान ले रहे हैं या तो फेक है या तो जेन्यून है, कोई उसका टेस्ट ट्यूब तो होना चाहिए, टेस्टिंग मेथोडोलॉजी तो होना चाहिए कि भाई ये फेक है या अनफेक है. क्योंकि या तो सर इसमें क्या था कि हम लोग ने उसके पास से माल लिया, जब हमने माल लिया हम लोग खुद लोडिंग करवाया, उसके पास GSTR 3B में उसको हम लोग ने चेक किया, GSTR 1 में हम लोग ने चेक किया, माल का पेमेंट हुआ, ई-वे बिल हुआ, हमारे पास माल आया, हमने उसका माल उतारा, हम लोग ने उसको यूज़ किया, अभी ख़त्म हो गया बात. अभी पीछे से बाप. Yes, so no one can travel into past. This is the established fact, right? हाँ. तो भूतकाल में जाके मैं कुछ कर नहीं सकता, राइट? अब तो जो हो गया है वो डॉक्यूमेंटेशन से ही चलेगा. ओके, तो आप नटशेल में बात वही है. और सर दूसरी बात, वो कोई भी आपका अगर इमोशन है, ये जो आप कह रहे हो इमोशन है, लेकिन मैं उसको दरकिनार नहीं कर रहा. दूसरी हाँ. चीज़, अभी कोई भी नया लॉ पास होता है या नया लॉ बनाया जाता है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो इंडस्ट्रीज़ के सब लेवल को हम लोग को इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. अभी फॉर एग्जांपल जो मेन फेस कर रहा है वो ट्रेडर या तो मैन्युफैक्चरर जो जहाँ से माल ले रहा है, मगर जो लॉ बनाने वाला है या लॉ जिसको सजेशन देने वाला है वो इंडस्ट्री कोई और है और या वो पर्सन कोई और है. तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर GST वाले अगर कोई लॉ बनाते ना तो नीचे से लेकर ऊपर तक सबको इन्वॉल्वमेंट करके पूछ के सजेशन दे के लॉ बनाए. यू आर राइट, बट वो जो अपनी अपनी एसोसिएशन के माध्यम से आगे आए और वो बात करे. अगर ट्रेडर को हम बात करने जाएंगे और उनको उनके परेशानी समझने जाएंगे तो हमारा लीग ही चेंज हो जाएगा. आज एज ए इंडस्ट्री हमारा लीग ये है कि हमारा हैरेसमेंट ना हो. सिंस हमने GST पे किया, किसको जो GST कलेक्शन के लिए जिसको ऑथराइज किया गया है, ऑथराइज डीलर बनाया गया है, उसको हमने GST पे किया. अब आगे उसकी वो नहीं किया तो हमको हमारा अभी दायरा समझना है और हमारे दायरे में क्या हम सेफगार्ड हम अपने आप को कर सकते, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम सबकी करने जाएंगे
तो मिनिस्ट्री क्या सर, मैं जीएसटी आपको सबकी Sir, 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 we'd मैं- like to move on in the नहीं, panel एक मिनट, discussion एक as मिनट, well. सर, We एक can मिनट, keep सर। all the question answers सर at the एक end, मिनट sir. सर मेरा सर एक मिनट सर लेट अस डिस्कस दिस वन टू वन प्लीज। सर एक मिनट सर, अभी क्या है कि आपने बोला कि जैसे जीएसटी लॉ वाले जो है सामने देख रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अभी है ना, आप जो ये कोई भी चीज़ एप्लीकेशन होते ना सर, तो उसको एक लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है थोड़े समय के लिए। अगर वो प्रिवेंट ओके हो जाता है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ऐसा कुछ अगर सोर्स रहेगा ना तो थोड़ा ठीक रहेगा। Noted. Sure.